قرآن حفظ کرنا، جن کے بچوں کے جو والدین آئے ہیں، والد آیا ہے، بھائی آئے ہیں، چاچے آئے ہیں، ان کے لیے قرآن کو حفظ کرنا اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ مہینے نہیں سال بیت جاتے ہیں تب جا کے قرآن سینے میں اترتا ہے۔ کتنے دن یہ طالب علم اپنے گھر سے بے گھر رہتے ہیں تب جا کے قرآن آتا ہے۔ کتنے دن یہ اپنوں سے دور رہتے ہیں تب جا کے قرآن آتا ہے۔ کتنے دن یہ ماں کی ممتا کے آنچل سے دور رہے تب جا کے قرآن آیا۔ کتنے دن یہ بچے باپ کی شفقتوں سے دور رہے تب جا کے قرآن آیا۔ ایسا نہیں کہ ان کو پیار کرنے والی ماں نہیں، ایسا نہیں کہ ان کو شفقتیں دینے والا باپ نہیں، ایسا نہیں ان سے محبت کرنے والی بہن نہیں، سارے رشتے موجود ہیں۔ خدا کی قسم ان قرآن والوں کا یہ حال کہتا ہے، سارے رشتے ایک طرف، خدا کا قرآن ایک طرف، سارے رشتے ایک طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر رشتے سے دوری برداشت کر سکتے ہیں لیکن قرآن سے ہم دوری برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگ آج اپنے بچوں کو MBBS بناتے ہیں، لوگ آج اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، لوگ آج اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں، لوگ آج اپنے بچوں کو پائلٹ بناتے ہیں۔ کسرا والوں، ہر بندہ اپنے بچے کو طرح طرح کی ڈگریاں دلواتا ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم ہر ڈگری زمین کے اوپر کام آتی ہے، زمین کے نیچے جو ڈگری کام آتی ہے وہ حافظ قرآن کی ڈگری ہے، وہ عالم دین کی ڈگری ہے، وہ قاری قرآن کی ڈگری ہے۔ ہر ڈگری زمین کے اوپر کام آتی ہے، زمین کے اندر، زمین کے نیچے جو ڈگری کام آتی ہے وہ قرآن کی ڈگری ہے۔ زمین کے نیچے جو ڈگری کام آتی ہے وہ حافظ قرآن کی ڈگری ہے، زمین کے نیچے جو ڈگری کام آتی ہے وہ قاری قرآن کی ڈگری ہے۔ خدا کا واسطہ اپنے گھروں میں قرآن کا ایک پودا لگا لو، اپنے گھروں میں قرآن کا ایک پودا ضرور لگا لینا۔ اگر تم نے قرآن کا پودا نہ لگایا تو آخری وقت میں خون کے آنسو رو گے، کوئی تمہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ آخری وقت میں بھی اگر کوئی کام آتا ہے تو یہ قرآن والے کام آتے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ آخری وقت میں بھی اگر کوئی کام آتا ہے یہ مدرسے والے کام آیا کرتے ہیں۔ آج لوگ اپنے بچوں کو کالج پڑھواتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھواتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو سکول میں داخل کرواتے ہیں۔ آپ کا بچہ جب صبح صبح سکول جاتا ہے، نئے جوتے ہوتے ہیں، نئے کپڑے ہوتے ہیں، نئے کورس ہوتا ہے، بچہ ہر طرح سے چمک دھمک کے جاتا ہے، لیکن جو غریب بچے ہوتے ہیں انہیں جب کوئی پوچھتا نہیں، پھر یہ مدرسے والے ان بچوں کو سینے کے ساتھ لگایا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں، آج تم اپنے بچے کو سکول میں داخل کرواؤ، پرنسپل کہتا ہے آپ کے بچے کا داخلہ ہو چکا ہے لیکن آپ کا بچہ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ کیوں نہیں کلاس میں بیٹھ سکتا؟ کیوں نہیں کلاس میں بیٹھ سکتا؟ پرنسپل کہتا ہے داخلہ ہو چکا ہے مگر بچہ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ کہتا ہے اس لیے آپ کے بچے کے پاس سکول والے کپڑے نہیں ہیں، اس لیے یہ اندر کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سکول والا یونیفارم نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ سکول کے اندر کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سکول والی ٹائی نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ سکول میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سکول کے اندر جو جوتے ہیں وہ جوتے اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آخری بندے تک میں توجہ چاہوں گا، یہ جملہ میرا دل کی دھڑکنوں سے سن لینا۔ لوگوں، باپ کے پاس، غریب باپ کے پاس پہلے سکول والے کپڑوں کے پیسے ہوں گے تب جا کے اس کا بچہ کلاس میں بیٹھے گا۔ باپ کے پاس جوتوں کے پیسے ہوں گے تب جا
बच्चा स्कूल के अंदर क्लास में बैठेगा, बाप के पास किताबों के पैसे होंगे, तब जाके उसका बच्चा स्कूल में बैठेगा। लेकिन मुबारकबाद देता हूँ इस मदरसे और मदरसे वालों को, तुम्हारे बच्चों के कपड़े फटे होते हैं लेकिन ये मदरसे वाले इनकार नहीं करते, तुम्हारे बच्चों के जूते टूटे हुए होते हैं लेकिन ये मदरसे वाले इनकार नहीं करते, तुम्हारा बच्चा बिना यूनिफॉर्म के मदरसे में आता है, मदरसे वाले इनकार नहीं करते, तुम्हारा बच्चा बिना कुरान के आता है, मदरसे वाले इनकार नहीं करते। ये मदरसा वो जगह है जहां से लुटाया नहीं जाता बल्कि हर लौटे हुए को सीने के साथ लगाया जाता है। ये मदरसा वो जगह है जहां से बच्चों को लुटाया नहीं जाता बल्कि हर लौटे हुए को सीने के साथ लगाया जाता है। और लोगों, तुम क्या जानो ये मदरसों पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह हमारे अटक शहर से हमारे इंतहाई खूबसूरत और मुअज़्ज़ज़ मेहमान काफिले की सुसात खतीब पाकिस्तान आलम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना खान अफसर रजवी साहब, आप मिर्जा से तशरीफ लाए अपने दोस्त अहबाब के साथ। मैं आपको अपनी तरफ से प्रिंसिपल इदारा हाजा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सजाद किसरावी साहब, इनके बरादरान और इस मदरसे की तमाम इंतजामिया की तरफ से अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। हज़रात, तवज्जो चाहूंगा, मदरसा जामिया मेरिया गौसिया फैजुल कुरान के अंदर आप बैठे हैं। ये मदरसा होता है जो हमें सब्र सिखाता है, ये मदरसा होता है जो तलबा को अपनी खुशियों को पामाल करना सिखाता है, ये मदरसा होता है जो अपनी खुशियों को गला घोटना सिखाता है, तब जाके कुरान सीने में आता है। पूछो उलमा से बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुरान सीने में उतरता है। पूछो अल्लामा वकास साहब से कि बच्चों को एक एक आयत कैसे पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, तब जाके कुरान सीने में आता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उस माँ को जिसका बेटा आज जामिया मेरिया गौसिया से कुरान का हाफिज बन के निकलेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ उस बाप को जिसका बेटा आज कुरान की दौलत अपने सीने में लेके निकलेगा। और लोगों, तुम भी औलाद वाले हो, हर किसी को अपना बेटा प्यारा लगता है, हर किसी को अपनी औलाद प्यारी लगती है। आज जब तुम शाम को वापस आते हो 10-20 रुपए की चीज लाते हो, पहले बीवी से पूछते हो बता मेरा बेटा कहाँ है। बीवी कहती है फलां बिस्तर पे लेटा है। और यार तू हाथ बाद में धोता है, पहले जाके अपने बेटे को उठाता है, तू पाँव बाद में धोता है, पहले जाके अपने बेटे से प्यार करता है, तू खाना बाद में खाता है, पहले जाके अपने बेटे को सीने के साथ लगाता है। यार इन बच्चों के भी माँ बाप हैं, क्या इनके साथ माँ बाप प्यार नहीं करते? इन्हें भी माँ बाप प्यार करते हैं। ये भी माँ बाप की आंखों के तारे हैं, ये भी माँ बाप के दिल के दुलारे हैं, ये भी माँ बाप के प्यारे हैं। जिस दिन से, आखिरी जुमला है मेरा, मैं तवज्जो चाहूंगा, जिस दिन से बाप को ख्याल आता है, गरीब बाप को, मजदूर बाप को जिस दिन ख्याल आता है कि मैंने बेटे को कुरान का खादिम बनाना है, मैंने बेटे को कुरान का कारी बनाना है, मैंने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाना है, वो बाप, मजदूर बाप, गरीब बाप अपने बेटे से कहता है बेटा तेरी खातिर तेरी जुदाई मैं बर्दाश्त करूंगा लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनना पड़ेगा। बेटा तुझसे दूरी मैं बर्दाश्त करूंगा लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनना पड़ेगा। बेटा लोगों के आगे धक्के मैं खाऊंगा लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनना पड़ेगा। लोगों की गालियां मैं सुनूंगा लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनना पड़ेगा। टोकरियां मैं उठाऊंगा लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनना पड़ेगा।
मजदूरियां मैं करूंगा, लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनना पड़ेगा। सूरज की तपश मैं तेरा बाप बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनना पड़ेगा। आंधियों और तूफानों का मुकाबला मैं करूंगा, लेकिन तुझे कुरान का हाफिज बनना पड़ेगा। ये बाप का प्यार होता है। कभी माँ की मोहब्बत को देख लिया करो। माँ बेटों को बगैर नहीं सोती। बेटा सो भी जाए ना, माँ उठ उठ के रात को बेटे को देखा करती है। लेकिन जिस दिन बेटा इजहार करता है अम्मा मैंने कुरान पढ़ना है, माँ बच्चे को तैयार करती है, सर पे हाथ रख के कहती है जा तुझे मैं खुदा की रहमत के हवाले करती हूँ। वो गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा जब मदरसे में आता है, आके कुरान को हिफ्ज करता है, उधर अमीरों के बच्चे, उधर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे जब शाम के वक्त अपने घरों से निकल के दुकानों पे जाके मनचाही चीजें खाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, इधर गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा मदरसे से बाहर निकलता है, मन उसका भी करता है, पसंद उसकी भी है, वो भी कोई चीज खरीदे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तालिब इल्म गरीब का बच्चा हाथ बगलों में दुबा के हसरत लेके खड़ा हो जाता है। मशीयत इलाही की तरफ से जवाब आता है, ए कुरान वाले परेशान क्यों होता है? अगर पैसे नहीं है उदास ना हो, कुरान पढ़, कुरान की दौलत को सीने में ला। एक वक्त ऐसा आएगा तू मुसल्ले पे खड़ा होगा, तुझे इमाम बनाया जाएगा, पूरी बस्ती को तेरा गुलाम बनाया जाएगा। बच्चे परेशान क्यों होता है? पूरी बस्ती को एक वक्त आएगा गुलाम बनाया जाएगा। वो लोगों मदरसों का ख्याल किया करो। जो लोग मदरसों के खिलाफ बक बक करते हैं वो अपनी जबानों को ताले लगाओ, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वही लोग दुनिया में शाद रहते हैं, वही लोग दुनिया में शाद रहते हैं जो मदरसों के साथ रहते हैं। वही लोग दुनिया में शाद रहते हैं जो मदरसों के साथ रहा करते हैं। कभी आया करो, कभी आया करो कारी मोहम्मद सजाद रजवी साहब के पास, कभी आया करो इस मदरसे जामिया मेरिया गफूरिया में, आके पूछा करो कारी साहब से, अलामा साहब तेरे मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खाने का इंतजाम कहाँ से होता है, पीने का इंतजाम तू कैसे करता है, लिबास का इंतजाम तू कैसे करता है? कभी आया कर। अगर नहीं आता, इस मदरसे में नहीं आता, फिर किसरां के किसी कब्रिस्तान में जाया कर, किसरां के किसी कब्रिस्तान में जाया कर। तुझे किसरां के कब्रिस्तान में ऐसी कब्रें भी मिलेगी जिनके ऊपर कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है, मुर्दों की हड्डियां नजर आ रही हैं। मिट्टी को छोड़ो यारो, खुदा की कसम ऐसी कब्रें भी हैं जिनके ऊपर फूल तो छोड़ो मिट्टी डालने वाला कोई नहीं है। फिर अपने आप से पूछ, जो करोड़ों की जायदाद तू छोड़ के जा रहा है, तेरा बेटा तेरे बाद क्या सदका करेगा? तेरा बेटा तेरे बाद क्या खैरात करेगा? नहीं, हमने ऐसे अमीरों को भी देखा, उनके मरने के बाद उनके बेटों ने बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर याशिया की है। और यार जीते जी खुद अपने हाथों से सदका करके जा, जीते जी खुद अपने हाथों से पैसा ऐसे मदरसों पे खर्च करके जा, इन बच्चों के खाने का इंतजाम करके जा, इन बच्चों के पीने का इंतजाम करके जा, इन बच्चों के रिहाइश का इंतजाम करके जा, इन बच्चों के बिस्तर का इंतजाम करके जा। मैं नहीं जानता तेरे मरने के बाद कितने लोग नमाज़े जनाजा में आएंगे। मैं ये भी नहीं जानता तेरे मरने के बाद कितने लोग कुल की महफिल में आके तेरे लिए लखियां पढ़ेंगे। मैं ये भी नहीं जानता तेरे मरने के बाद कितने लोग हाथ उठा के तेरे लिए दुआ करेंगे। मैं ये भी नहीं जानता तेरे मरने के बाद कितने लोग तेरे लिए आंसू बहाएंगे। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम इतना जानता हूँ, अगर तूने इस मदरसे में पढ़ने वाले तुलबा का ख्याल किया तू मार जाएगा। तेरी कब्र पे इन बच्चों के सदके अल्लाह रहमतों का नज़ूल करेगा। इसलिए
اس مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو. جب تک یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے اللہ تمہاری قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے گا. اس لیے کہ لوگوں ان علماء کی قدر کرو, ان کے ساتھ وفائیں کرو, ان طلباء کی خدمت کرو. علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری دستان تک بھی نہ رہے گی دستانوں میں. اللہ ملک کی توفیق.